Okay, class 8. Today we start our new exercise, exercise 22.2, volume and surface area. This is a part 2 video. Okay. So in previous video already learned the formula of the surface area, lateral area and the volume of the cuboid. So in this exercise we find out the total surface area and the lateral surface area. Okay. So question number 1 is find the total surface area and the lateral surface area of a cuboid with length equals to 3.5 meter, breadth equals to 32 decimeter and the height equals to 260 centimeter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियर इज मेजरमेंट गिवन. तो इसको एक मेजरमेंट हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स लेंथ इक्वल्स टू 3.5 मीटर. तो इसको अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होगा दैट मीन्स 3.5 इंटू 100, हियर इज 350 सेंटीमीटर. क्लियर. ब्रेथ इक्वल्स टू गिवन 32 डेसीमीटर. मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, दैट मीन्स 32 इंटू 10 यानी 32 सेंटीमीटर and height is given equals to 260 centimeter. That means all units are come in centimeter. It's time to find out the total surface area. So total surface area of cuboid formula is what? 2 length into breadth plus breadth into height plus height into length. Okay, so 2 350 into 320 plus 320 into 260 plus 260 into 350. Okay. So the answer of the total surface area is 5,92,400 centimeter square. Okay, it's time to find out the lateral surface area. We know that very well the lateral surface area, that means what? Area of 4 walls. Lateral surface area is 2 into length plus breadth into height. So 2 in place of length is 350, breadth is 320 and height is 260. So 2 into 260 is 520 into here is 670. That means 0 0 3484 centimeter. That means 3,48,400 centimeter square. Okay, note it down. In question number 2, find the length of the diagonal. Length of the diagonal. Okay, and length is given 10 centimeter, breadth is given 8 centimeter and height is given 4 centimeter. So what the formula of the length of the diagonal? Length of the diagonal of a cuboid equals to, length of the diagonal of cuboid equals to root under L square plus B square plus H square. Okay, so length is 10 square, breadth is 8 square and height is 4 square. So it's 164 and here is 16. Here is 180. So the length of the diagonal of cuboid is
3 into 3 into 2 into 2 into 5, that means 3 to just 6 root 5. 6 root 5 centimeter is the length of the diagonal. Okay. Our next question is from question number 4, find the surface area of a cube whose volume is given. क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है? सरफेस एरिया, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है? वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है. किसका वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है? क्यूब का वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है. वॉल्यूम इक्वल्स टू 512 मीटर क्यूब. ओके, तो सब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमको पता है, साइड क्यूब, और इधर ये 512 दिया गया है. दैट मीन्स साइड इक्वल्स टू क्या? अंडर क्यूब रूट, यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा. ओके, तो किसका हो जाएगा? 8 का. क्लियर? दैट मीन्स 8 मीटर इसका साइड था. अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है? सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर. सो 6 इंटू 8 स्क्वायर, दैट मीन्स 6 इंटू 64, 6 4 24 2 36, दैट मीन्स 384 मीटर स्क्वायर. क्लियर? ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड दी वॉल्यूम. आपको वॉल्यूम निकालने के कहा गया है और क्वेश्चन में सरफेस एरिया दिया गया है. सरफेस एरिया क्या दिया गया है? 54 मीटर स्क्वायर. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 54. देन साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 54/6 इक्वल्स टू 9. देयरफॉर साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9, दैट मीन्स 3. साइड 3 पता चल गया. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, हियर इज 27 मीटर क्यूब. क्लियर? नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 गिवन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स इज 16:25. 16:25. आपको निकालने के लिए क्या कहा गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, यानी अगर किसी भी दो क्यूब्स का अगर सरफेस एरिया का रेशियो 16:25 है, तो उन्हीं दो क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो ऐसे ही ना लिखा होगा, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब, रेशियो में है इसलिए बाई में लिखेंगे हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब. क्लियर ना? कैसे दिया है क्वेश्चन? 16/25. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसका भी 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये साइड 1 पकड़ लेते, साइड 2 पकड़ लेते, दो क्यूब का, ये हो गया 16/25. तो ये 6 कट गया. ठीक है, और ये तब यहाँ का साइड स्क्वायर जाएगा तो वहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा. दैट मीन्स इसका साइड, पहला क्यूब का साइड और दूसरा क्यूब का साइड क्या हो जाएगा? रूट अंडर 16/25. इसका मतलब ये हो जाएगा 4/5. ये क्लियर हो गया कि पहला जो क्यूब था उसका साइड था 4 और दूसरा था उसका था 5. तो हम लोग को जब वॉल्यूम का रेशियो निकालने बोला तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, क्योंकि उसको भी रेशियो में निकालने के लिए कहा गया है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड 1 था और जो साइड 2 था उसका क्यूब और यहाँ से उसका क्यूब. क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ये 4/5 का क्यूब, दैट मीन्स ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 125. सो द वॉल्यूम हो जाएगा उन लोगों का क्यूब्स का रेशियो में 64:125. ओके, नोट इट डाउन. Okay, so in question number 10, a cuboid total surface area is given 60 meter square and its lateral surface area, that means area of the four walls, is given 40 meter square.
फाइंड द एरिया ऑफ इट बेस, यानी बेस का एरिया कितना कंटेन कर रहा है। बेस का एरिया दैट मीन्स ये क्यूबॉइड पोर्शन है, दिस इज योर क्यूबॉइड, ये नीचे बेस जो बन रहा है, ये जो बेस क्रिएट हो रहा है, इस बेस का एरिया पूछा गया। दैट मीन्स ये लेंथ और ब्रेथ कितना कितना है, ये बेस लेंथ बेस कैसे, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नीचे का फिगर क्या बना है रेक्टेंगल, यानी वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ को इंटू करके कितना आएगा। ओके, तो हमारे पास दिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पे आपको 60 गिवन दिया गया है और ये 2 यहाँ चला आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यानी इसको कट कर देंगे तो इसके जगह हमको पता चल गया ये हो गया 30। यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं। अब मेरे पास दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसका आंसर दिया हुआ है 40, ये 2 अगर इधर चलाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर जो L प्लस बी इंटू एच बचा है, अगर इसको इंटू करें तो क्या हो जाएगा, L इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा, इसको कट कर देंगे 20। तो ये इसको इक्वेशन पकड़ लेते हैं 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे L इंटू एच और B इंटू एच का वैल्यू कितना है 20, तो हम यहाँ पे L इंटू एच और B इंटू एच है, इस जगह के जगह इससे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी L इंटू एच है और यहाँ पे B इंटू एच है, इसका टोटल वैल्यू कितना दिया 20, तो हम इस पूरे को हटा के हम 20 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एज इट इज़ जैसे 30 लिखा हुआ है और लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे प्लस, और इसको हटा के हम यहाँ से क्या लिख देते हैं 20 लिख देते हैं। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इसके बदले क्या लिखा हुआ था 20, तो 20 इधर आएगा, तो यानी 30 माइनस 20 इक्वल्स टू L इंटू ब्रेथ यानी 10, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी जो आपसे बेस पूछा गया था एरिया ऑफ बेस जो हम लोग को निकालना था, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 10 मीटर स्क्वायर है। क्लियर, नोट कर लीजिए।